46 सेकंड के समय के साथ 400 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीतने पर बधाई देती हूँ। सुश्री हिमा दास की उपलब्धि उल्लेखनीय है क्योंकि वह असम के नौगावा जिले के छोटे से गांव कांदुली मरी के किसान की बेटी है और अपने कठिन अभ्यास, दृढ़ संकल्प एवं जीवटता से उन्होंने देश के लिए गौरव अर्जित किया है। लड़कियों की मेहनत दिखती है। उनकी स्वर्णिम सफलता हमारे सभी उदयमान खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा की स्रोत होगी। यह सभा सुश्री हिमा दास को उनके भावी प्रयासों के लिए सफलता की कामना भी करती है। नाउ जितेंद्र सिंह, पेपर्स टू बी लेड ऑन द टेबल। अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं आज की कार्यवली की क्रम संख्या 4 के आगे अपने नाम पर सूचीबद्ध कागजात सभा पटल पर रखता हूं। धन्यवाद। आइटम नंबर 5 अर्जुन राम मेघवाल। Honorable Madam Speaker, with your kind permission, I rise to lay the papers on the table of the House mentioned against my name at serial number 5 in the today's revised list of the business. Thank you. Okay. आइटम नंबर 6 ये पेपर लेंग तो होना चाहिए ना किसी किरण रिज्जू जी। Yes, item number 6. Madam, I rise to make a statement regarding the status of implementation of the recommendations contained in the 198th report of the Standing Committee on Home Affairs on disaster in Chennai caused by torrential rainfall and consequent flooding pertaining to the Ministry of Home Affairs. Okay, yes. Please, please, please. Yes. Now, honorable members, I have received. You please go to your seat, otherwise it will not be accepted. I am sorry. Nothing I can do. The same thing will happen again. I have received notices of motion of no confidence in the Council of Ministers from Sri Srinivas Kesinani, Konakala Narayan Rao, Thota Narsimanji, Tariq Anwar, Mohammad Salim, Mallikarjun Kharge, N.K. Premchandran and K.C. Venugopal. I am duty bound to bring the notices before the House. So, now we have gone back. Yes, K. Srinivas Kesinani, no? Yes. As I'm taking it. As I'm taking it as the notice from Sri Srinivas Kesinani is first in point of time. I ask Sri Kesinani to seek leave of the House. Only you have to take the leave. Kesinani is there. Speaker, I seek leave of the House to move the following motion. That the House expresses its want of confidence in the Council of Ministers. Thank you, Madam. Yes. May I request those members who are in favor of leave being granted to this motion to rise in their places. Yes. Very good. Yes, yes. 50 से ज़्यादा नो प्रॉब्लम। गिनती करना है क्या? करो करो। मैंने तो कर लिया। अगर इनको गिनती करना है तो मैं आगे। Yes. So more than 50 members are there. Yes. So the leave is granted. Yes, the leave is granted. Now I will inform the House about the date of discussion because I will have to see the whole business. Definitely we will take it for discussion at the date and time. The time also we will have to allot how much time. So yes. So I will. Yes. Yes. I will have to time. No date and time. I will declare within 10 days. I know. According to rule, I will go. Don't worry. Otherwise, I will take your help also. Sure, sure. Yes, Anand Kumar. Anything? मैडम, Yes. विपक्ष के
कई पार्टियां हाँ ठीक। वो अविश्वास प्रस्ताव मुंह किया है। वो अविश्वास प्रस्ताव आप स्वीकार कर लीजिए, हम तैयार हैं। हाँ, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। पूरा देश में नरेंद्र मोदी जी को कॉन्फिडेंस है। हाउस में भी 2/3 हम इसको कर लिया है। आई हैव डन इट, इट्स ओके। मैंने स्वीकृत कर लिया है, नाउ 0 hour, प्लीज आई विल let you know the time just within 1 or 2 days. We will have to think about it. Please take your seat now. Accepted, no? Now please sit. Sri Jugal Kishore Sharma ji. We will have it. अध्यक्ष महोदय जी, 0 आपने मुझे इस सत्र में पहले ही दिन अच्छा, इनके अपने बाद क्षेत्र की बैठो ना। एक अरे, I will विशेष allow समस्या all की of ओर you. ध्यान दिलाने का मौका दिया है। ప్రారంభమైన పార్లమెంటు సమావేశాలు, సభకు హాజరైన ప్రధాని మోదీ. ఎంపీలతో చంద్రబాబు టెలికాన్ఫరెన్స్, పార్లమెంటులో వ్యవహరించాల్సిన అంశాలపై చర్చ. పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాలో లోకేష్ పర్యటన, పలు అభివృద్ధి పనులకు శ్రీకారం. ఇక డీటెయిల్స్ చూద్దాం. టీడీపీ ఎంపీలతో అధినేత చంద్రబాబు టెలికాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించారు. నిన్నటి అఖిలపక్షం భేటీలో చర్చించిన అంశాల గురించి అధినేతకు టీడీపీ ఎంపీలు వివరించారు. అనంతరం పార్లమెంటు సమావేశ నేపథ్యంలో అనుసరించాల్సిన వ్యూహంపై భేటీలో చర్చించారు. మనకు ఎక్కడ అన్యాయం జరిగిందో అక్కడే నిలదీయాలని, ఎంపీలంతా రాష్ట్ర ప్రయోజనాల కోసం పార్లమెంటు వేదికగానే పోరాడాలని సీఎం ఆదేశించారు. యావత్ దేశం ఇవాళ ఏపీకి జరిగిన అన్యాయాన్ని గమనించిందని, రాష్ట్ర ప్రజలు కూడా పార్లమెంటులో ఏం జరగనుందో అని ఆసక్తిగా చూస్తున్నారని భేటీలో చంద్రబాబు అన్నారు. పార్లమెంటు వర్షాకాల సమావేశాలు ప్రారంభమయ్యాయి. ఇప్పుడు ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా చూద్దాం.
lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, not likely. I be taking shots, yeah, cold-blooded, icy. Watching numbers grow is what I call sightseeing. In the front row, run it up when they hype me. The following Yes, now oath and affirmation, Secretary General. श्री कुकड़े मधुकर राव यशवंत राव। मैं मधुकर यशवंतराव कुकड़े जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा। जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ, उसे कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूँगा। Congratulations. श्री गावित राजेंद्र धेडिया। मी राजेंद्र धेड्या गावित लोकसभेचा सदस्य म्हणून निवडून आलो असल्याने परमेश्वरास स्मरून शपथ घेतो की मी विधीद्वारा स्थापित भारतीय संविधानाद्वारे व्रत अनन्य श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन, भारतीय सार्वभौमत्वाचे आणि भारतीय एकतेचे निर्धाराने रक्षण करेन आणि जे कर्तव्य आता मला प्राप्त होत आहे ते नेकीने पार पाडेन। I, Dr. having been elected a member of the House of the People, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. Thank you. श्रीमती तबस्सुम बेगम। मैं जो लोकसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगी तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूँ, उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूँगी।
माननीय सदस्यगण, मुझे हमारे 3 पूर्व सदस्यों श्री बहादुर सिंह, श्री सनत कुमार मंडल और श्री कंडाला सुब्रमण्यम के दुखद निधन के बारे में सभा को सूचित करना है। श्री बहादुर सिंह पंजाब के लुधियाना संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से पहली और दूसरी लोकसभा के सदस्य थे। श्री बहादुर सिंह ने अनुसूचित जातियों के उत्थान और लघु उद्योग के प्रोत्साहन के लिए अथक कार्य किया। श्री बहादुर सिंह का निधन 25 अक्टूबर 2017 को 92 वर्ष की आयु में संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ। श्री सनत कुमार मंडल पश्चिम बंगाल के जयनगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 7वीं से 14वीं लोकसभा के सदस्य थे। अपने लंबे संसदीय जीवन के दौरान श्री मंडल ने विभिन्न संसदीय समितियों के सदस्य के रूप में सेवा की। सक्रिय सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता श्री मंडल पश्चिम बंगाल में वंचितों और गरीब किसानों के कल्याण हेतु सदैव कार्यरत रहे। बम धमाका। श्री सनत कुमार मंडल का निधन 19 अप्रैल 2018 को 76 वर्ष की आयु में पश्चिम बंगाल में के कोलकाता में हुआ। श्री कंडाला सुब्रमण्यम तत्कालीन मद्रास राज्य, जो अब आंध्र प्रदेश का विजयनगरम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र है, पहली लोकसभा के सदस्य थे। श्री कंडाला सुब्रमण्यम का निधन 8 जून 2018 को 97 वर्ष की आयु में आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में हुआ। हम अपने 3 पूर्व साथियों के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं और यह सभा शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करती है। माननीय सदस्यगण, उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल के जिले में 1 जुलाई 2018 को एक बस खैरी खाई में गिर जाने से 48 व्यक्तियों की मृत्यु होने और कई अन्य के घायल होने की सूचना है। सभा इस दुखद घटना पर शोक व्यक्त करती है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करती है। अफगानिस्तान के नंगरहर प्रांत में 16 और 17 जून 2018 को ईद उल फितर उत्सव के दौरान हुए 2 आतंकी बम धमाकों में कई व्यक्तियों की मृत्यु होने और अनेक अन्य के घायल होने की सूचना प्राप्त हुई है। एक अन्य आत्मघाती आतंकी हमले में अफगानिस्तान के जलालाबाद में 1 जुलाई 2018 को अफगानिस्तान के सिख और हिंदू समुदाय के 13 सदस्यों की मृत्यु होने की सूचना प्राप्त हुई है। यह सभा इन कायरतापूर्ण आतंकी हमलों की कड़े शब्दों में एक स्वर से निंदा करती है और इन आतंकी हमलों में निर्दोष लोगों के मारे जाने पर शोक व्यक्त करती है। यह सभा अफगानिस्तान के लोगों, संसद और सरकार के साथ एकजुटता व्यक्त करती है तथा ऐसे जघन्य हमलों के षड्यंत्रकर्ताओं को सजा दिलाने के लिए उनके द्वारा किए जाने वाले प्रयासों का समर्थन करती है। यह सभा दिवंगत आत्माओं के सम्मान में अब कुछ देर मौन खड़ी रहे। ओम शांति। 1 मिनट। सदस्यगण, 1 मिनट। आपको एक सूचना देना चाहूँगी। आप में से बहुत से सदस्यों ने ये मांग की थी कि हमें हाउस के अंदर वाईफाई सुविधा उपलब्ध हो जाए ताकि हम अपने डिवाइस पे एक पेपरलेस की तरफ हम आगे बढ़े। मैं आपसे कहना चाहूँगी, हमारे